So hello everyone. So in this video we are going to discuss what is Kubernetes, what are the basic features of the Kubernetes, and the main thing is how Kubernetes architecture works. So कैसे वो components एक दूसरे से बात करते हैं, what are the main components in the Kubernetes architectures, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. बट वो सारी चीजें डिस्कस करने से पहले फर्स्ट let's check what is Kubernetes. So Kubernetes क्या है? Kubernetes is like the wrapper around your any containerized application. तो जब कोई भी हमारे पास कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन है, ओके, तो वो कंटेनर को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट. लेट्स से यू वांट टू स्केल दोस कंटेनर्स, यू वांट टू डू लोड बैलेंसिंग अक्रॉस द कंटेनर्स, यू वांट टू हैंडल एनी क्रैश दैट हैपेंड ऑन द कंटेनर, राइट? सो ये सारे फीचर्स कुबरनेटिस देता है इंटरनली, जिसके थ्रू हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं. ओके, so before going to the features, first we need to know what is pod. So this is the very important thing in the Kubernetes. Pod is basically the smallest entity in the Kubernetes. Okay. So जो भी हमारे कंटेनर होंगे वो pod के अंदर रन कर रहे होंगे. Okay. यूजुअली पॉड के अंदर एक ही कंटेनर रन करता है, बट इन सम केसेस लाइक लेट्स से कोई दो कंटेनर है जिनके बीच में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड है. सो इन दोस केसेस वो दोनों कंटेनर एक साथ पॉड के अंदर रन कर सकते हैं और मल्टीपल कंटेनर्स भी रन कर सकते हैं, बट यूजुअली हम एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर रन करते हैं. ओके, सो उस कंटेनर के अराउंड एक रैपर है, दैट इज पॉड. ओके, सो पॉड की बेसिक डेफिनेशन नाउ वी नो. सो पॉड विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस आर्किटेक्चर वर्क्स एंड हाउ दिस फीचर्स आर प्रोवाइडेड. ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो टू द फीचर्स. ओके, सबसे पहला फीचर इज सेल्फ हीलिंग. ओके, now let's say any of your container is crashed. So if your application is running only on the single container, then your website or your application will be down. Okay, so rather than going through this, Kubernetes provides the way of self-healing. If there is any container that is down, Kubernetes will respawn that pod. So that container will be running inside one pod, right? So if that container is crashed, that pod will be discarded and new pod will be created. Okay. So that is the feature of Kubernetes that provides the self-healing. Now the second is load balancing. So load balancing क्या होता है? As the name suggests, जब हमारे पास let's say एक कंटेनर के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, सारा ट्रैफिक आ रहा है. सो हियर इफ यू सी इन दिस डायग्राम, राइट, लेट्स से सारा ट्रैफिक इस सिंगल पॉड पे आ रहा है. ओके, तो एक टाइम पे इस मशीन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा और देर आर चांसेस कि ये पॉड क्रैश हो जाए. ओके, सो to distribute this traffic across these pods, right, that feature is also provided through Kubernetes, that is called load balancing through service and all. Okay, we'll discuss all these features in detail in some other videos, but here we are just discussing what are the basic features that Kubernetes provide. Now we have scalability. Scalability is also one of the best features in the Kubernetes. So Kubernetes applications are very easy to scale horizontally. Okay, now what do I mean by horizontal scaling? So when we have, let's say we have only these two pods, right, and now all the traffic is coming to these two pods. Now एक टाइम पे लेट्स से इस मशीन का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वी कैन डिफाइन कि अगर किसी मशीन का यूटिलाइजेशन इज मोर देन 70%, 75%, वी शुड create more number of instances of these pods on some different machine that will help us to manage the resources across the different machines, right? There will be minimum downtime and scalability will be very easy. Okay, so this is also feature provided by the Kubernetes. Then we have resource utilization. So what is the resource utilization? So basically containers uses volumes, memory, all these things, right? So to utilize these things in a very optimized manner, Kubernetes provide this resource utilization. So when we use pods, right, so pods are extremely optimized to utilize only the resources that are required, to not waste any resources across the our machines. So our machine, so especially in case of on-premises setup, right, our resources are very important, like this, our memory or storage. So those things need to be utilized very in very optimized manner. So that also Kubernetes helps in that. And now last thing is automated rollouts and rollbacks. So let's say you are deploying the new version of your application. Okay, so you want to deploy the new version of your application. So rather than deploying everything, like rather than replacing every container with the new image, Kubernetes will do slowly. It will do first few pods will be upgraded and then check if there is any issue happening. If there is any issue happening, Kubernetes will automatically roll out. Okay, roll back to the previous version which was stable and which was already running. Okay, this is also feature of the Kubernetes. Now we come to the main thing, that is your Kubernetes architecture. How Kubernetes cluster architecture works. So basically पहले हम वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे सारे कंपोनेंट्स की कि सारे कंपोनेंट कैसे काम करते हैं. उसके बाद वील डिस्कस द कंप्लीट फ्लो, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, ऑल दिस थिंग वील डिस्कस. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मास्टर नोड एंड वर्कर नोड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्कर नोड. सो वर्कर नोड क्या होता है? जो भी हमारे पॉड्स, जो भी हमारे कंटेनर्स चल रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी रनिंग ऑन वर्कर नोड. ओके, सो देयर कैन बी मल्टीपल वर्कर नोड टू हैंडल द रिसोर्सेज एंड ऑल. ओके, तो यहाँ पे जैसे दो पॉड चल रहे हैं, इस पे दो पॉड चल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स कैन बी हैंडल्ड थ्रू मल्टीपल वर्कर नोड्स. बट what is master node? Master node is like the headquarter. Every decision will be taken at the master node only. किस वर्कर नोड पे डिप्लॉय करना है पॉड, कितने पॉड्स डिप्लॉय करने हैं, क्रैश कैसे हैंडल करना है, सारे डिसीजन विल बी टेकन ऑन द मास्टर नोड, दैट इज योर कंट्रोल प्लेन. सो देयर कैन बी मल्टीपल मास्टर नोड्स आल्सो. इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही मास्टर नोड हो. मास्टर नोड्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, वर्कर नोड भी मल्टीपल हो सकते हैं. यहाँ पे हम ओनली सिंगल मास्टर नोड चेक कर रहे हैं. तो नाउ वील डिस्कस ईच कंपोनेंट वन बाय वन इन अ वेरी ब्रीफ वे, देन वील डिस्कस द होल फ्लो.
उससे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सारी चीजें काम कर रही है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज योर क्यूब एपीआई सर्वर। सो योर क्यूब एपीआई सर्वर इज लाइक योर गेट कीपर, ठीक है। सारी रिक्वेस्ट, चाहे वो क्यूबलेट से आ रही हो, चाहे वो वर्कर नोड से आ रही हो, चाहे वो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन द मास्टर नोड इटसेल्फ, okay, all these requests will be going through cube api server। Okay, this is the basic use of cube api server. We'll discuss it in detail when we understand the complete flow। Okay, then we have HCD। HCD is your database where every state, every data, like किस वर्कर पे कौन सा पॉड रन है, उसकी क्या स्टेट है, क्या वो क्रैश्ड है, सारी डिटेल्स, सारी सर्विसेज की डिटेल्स, सब डिटेल्स HCD में स्टोर होंगी। ये बेसिकली एक की वैल्यू बेस्ड डेटाबेस है जहाँ पे सारी डिटेल्स स्टोर होंगी, और क्यूब एपीआई सर्वर विल स्टोर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन द HCD। देन वी हैव स्केड्यूलर। स्केड्यूलर का काम क्या है, लेट्स से हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आई है, लेट्स से हमें क्रिएट करना है एक न्यू पॉड, ठीक है। तो वो पॉड किस वर्कर नोड पे क्रिएट करना है, कहाँ पे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अवेलेबल है, कहाँ पे पॉलिसीज मैच कर रही है, ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर, और उसके बाद डिसाइड होता है कि कहाँ पे वो पॉड डिप्लॉय होगा। ओके, तो वो काम है स्केड्यूलर का। सो विल डिस्कस कैसे शेड्यूलर काम करता है इन डिटेल ऑल्सो, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो। देन वी हैव द कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर इज लाइक द वॉचर। तो कंट्रोलर मैनेजर विल कीप वॉचिंग इफ देयर इज एनी क्रैश और इफ देयर इज एनी लॉस इन द रेप्लिकास। सो लेट्स से हमारे पास ये दो दो पॉड्स चल रहे हैं और वन ऑफ द पॉड क्रैशेस। सो कंट्रोलर मैनेजर का काम है कि यहाँ पे एक न्यू पॉड डिप्लॉय करना, दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ हीलिंग। Okay, or let's say we want to maintain at least 5 replicas of the pods। Okay, we want at least 5 instances of the pod। So if any one of the instances crashed, और उन पांचों को मेंटेन करने का काम है कंट्रोल मैनेजर का। Okay, so now comes the cloud controller manager। इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज द टॉपिक ऑफ कंप्लीट सेपरेट वीडियो। ओके, बट टू गिव यू द ब्रीफ इंट्रो, क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर इज लाइक व्हेन यू आर नॉट यूजिंग ऑन प्रीमाइसेस सेटअप और द योर लोकल मशीन, when you are using anything like AWS or Azure or any cloud provider, GCP or anything, तो उस केस में कंट्रोल प्लेन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज योर क्लाउड कंट्रोल मैनेजर। लेट्स से आपका AWS का कोई क्लाउड प्रोवाइडर है, ओके, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगा कंट्रोल प्लेन से, थ्रू दिस क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा क्यूब एपीआई सर्वर से। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑन कंट्रोल प्लेन। नाउ लेट्स गो टू वर्कर नोड। तो वर्कर नोड पे, हर वर्कर नोड पे क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी, दीज टू कंपोनेंट्स विल बी रनिंग। सो क्यूबलेट का काम क्या है कि अपने वर्कर नोड पे क्या चीजें हो रही है, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड थ्रू क्यूबलेट। तो लेट्स से ये पॉड क्रैश हुआ है, या कोई नया पॉड आया है, या कोई नई रिक्वेस्ट आई है कि इस वर्कर नोड पे एक और पॉड चाहिए, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय क्यूबलेट। की कंटेनर्स की वो इमेज फेच करना रजिस्ट्री से, कंटेनर डिप्लॉय करना, ऑल दीज थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय क्यूबलेट ओनली। क्यूब प्रॉक्सी इज लाइक, क्यूब प्रॉक्सी हैंडल्स ऑल योर नेटवर्किंग पार्ट। ओके, कि ये दो पॉड्स हैं, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये पॉड इस दूसरी मशीन के पॉड से कैसे कम्युनिकेट करेगा, या एक्सटर्नल नेटवर्क से भी सारा कम्युनिकेशन, सारा नेटवर्किंग कैसे होगा, दिस ऑल थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय क्यूब प्रॉक्सी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन द ऑल द कंपोनेंट्स। हो गया, नाउ वी विल डिस्कस कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे एक रिक्वेस्ट प्रोसीड होती है। सो लेट्स से हमने कोई क्यूब कटल की CLI कॉल की जिससे हमें एक नया पॉड क्रिएट करना है। तो क्यूब एपीआई सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आई कि वी वांट वन न्यू पॉड। ओके, तो क्यूब एपीआई सर्वर एक एंट्री क्रिएट करेगा कि पॉड आईडी इक्वल्स टू दिस एंड वी वांट वन पॉड एंड द स्टेट विल बी पेंडिंग। इनिशियली स्टेट विल बी पेंडिंग क्योंकि कोई वर्कर नोड अभी तक असाइन नहीं कि कहाँ पे वो पॉड डिप्लॉय करना है। तो एक पॉड एंट्री क्रिएट होगी और HCD में स्टोर की जाएगी विद द स्टेट इक्वल्स टू पेंडिंग। नाउ शेड्यूलर का काम है क्यूब एपीआई सर्वर को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना कि क्या कोई रिक्वेस्ट आई है जिसकी स्टेट पेंडिंग है। अगर लेट्स से हमारे पास एक पॉड की रिक्वेस्ट आई है, उसकी स्टेट पेंडिंग है, तो शेड्यूलर जाएगा क्यूब एपीआई सर्वर के पास, वो पॉड की डिटेल्स लेगा और शेड्यूलर विल डिसाइड कि कहाँ पे वो पॉड डिप्लॉय करना है, किस वर्कर नोड पे डिप्लॉय करना है, बेस्ड ऑन द रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड अदर फैक्टर्स आल्सो। ओके, तो लेट्स से शेड्यूलर डिसाइड कि मुझे वर्कर नोड 1 पे, लेट्स से इसको वी कॉल वर्कर नोड 1, तो हमें वर्कर नोड 1 पे वी वांट टू डिप्लॉय द न्यू पॉड। ओके, तो शेड्यूलर विल डिसाइड वर्कर नोड 1 पे न्यू पॉड डिप्लॉय होगा। तो द एंट्री दैट वाज प्रेजेंट ऑन क्यूब एपीआई सर्वर, राइट, उसके अंदर नोड नेम की जगह आ जाएगा वर्कर नोड 1। नाउ हर वर्कर नोड पे जो क्यूबलेट रन हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा है क्यूब एपीआई सर्वर पे कि उस वर्कर नोड के लिए क्या कोई रिक्वेस्ट है। तो जब शेड्यूलर ने क्यूब एपीआई सर्वर को कहा कि वी वांट टू डिप्लॉय दिस पॉड ऑन वर्कर नोड 1, तो क्यूब एपीआई सर्वर ने उस एंट्री के अंदर वो रिक्वेस्ट मॉडिफाई कर दी वर्कर नोड 1 नाम से। नाउ दिस क्यूबलेट नोस कि वर्कर नोड 1 पे एक पॉड और क्रिएट करना है, बिकॉज क्यूबलेट इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग दिस क्यूब एपीआई सर्वर। ओके, तो kubelet will pull the image from the Docker registry, deploy that container and pod on this worker node 1। This is how this whole architecture works। Now comes the controller manager। When this new pod, let's say this is the new pod, when this pod is deployed, even the new pod or old pod, it doesn't matter, but this pod will be completely monitored through controller manager। ये चीज कैसे काम करेगी, लेट्स से ये पॉड हुआ क्रैश, इस पॉड पे कोई क्रैश हो गया, तो क्यूबलेट विल नो कि मेरे वर्कर नोड पे कोई पॉड क्रैश हुआ है। क्यूबलेट विल रिपोर्ट टू क्यूब एपीआई सर्वर। अब क्यूब एपीआई सर्वर क्या करेगा, HCD से वो एंट्री निकालेगा उस पॉड की और उसमें स्टेट को रिप्लेस कर देगा रनिंग से फेल्ड में, बिकॉज वो पॉड हो चुका है क्रैश, तो स्टेट विल बी रिप्लेस बाय फेल्ड। कंट्रोलर मैनेजर का काम है कॉन्स्टेंटली क्यूब एपीआई से पूछते रहना कि क्या कोई ऐसा इंस्टेंस है, पॉड है, सर्विस है या डिप्लॉयमेंट है, कोई भी ऐसी चीज है
जिसकी स्टेट हैज गॉन टू फेल्ड, ठीक है। तो कंट्रोलर मैनेजर विल चेक कि हाँ वो पॉड की स्टेट गई है फेल्ड में, कंट्रोलर मैनेजर will decide कि we want one more pod on the worker node 1. So controller manager will send the request to QAPA server to deploy one more pod on this worker node 1. So this is how all these components interact with each other. So QAPA server is like your gatekeeper where every request will go through your QAPA server. So this is the basic of how the request goes through, how in the things work in the backend. Okay. So this is it for the video. Let me know if you have any questions, any doubts, put it in the comment section. And thanks for watching the video.